Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. Hope you're doing well. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So this says, in the qualifiers for the 2023 ICC Cricket World Cup, cricket teams from European countries, Netherlands and Ireland, African countries, Zimbabwe and Kenya, and Asian countries, Afghanistan and UAE were the only 6 participants. Now, the first thing I notice is the 6 names of the countries start with different letters, so that makes my task easier, right? So I'll just simply use N and I, then Z and K, and finally Asian countries, that is A and EU, were the only 6 participants. The format of the qualifiers is as follows. The top 2 teams, in terms of the number of matches won, qualified for the World Cup. In case of a tie for the top 2 teams, the 2 teams that qualify for the World Cup was to be decided in a tiebreaker round. 2 matches were played every day over 6 days, Monday to Saturday, and that is why we have made a simple table. So, games start from Monday till Saturday. 1 match each was played in the morning and the evening slot. So, there are 2 slots. The first one is the morning slot, and the second one is the evening slot. The teams playing the evening match did not play the next day. Now what does this mean? अगर कोई team let's say evening match खेल रही है, that team will not play any matches on the next day. Any matches on the next day. That is, both the slots will have to be blocked for that particular team. So let's say if I say Afghanistan is actually playing on Monday, so Afghanistan cannot play either on the morning slot on Tuesday or the evening slot on the Tuesday, right? दोनों दिन वो country आपको नहीं दिखेगी. Right, that is what is meant by this statement. Now, each team played 4 matches, 1 match against every team except the team from the same continent. Right, so let's just put those alphabets again. So, N and I are 2 teams from the same continent. That becomes relevant now. African countries, that is Z and K, belong to Africa, so the same continent, and Asian countries, A and EU. So, what does this statement say? This says each team played 4 matches, 1 match against every other team except the team from the same continent. For example, Netherlands will not play with Ireland. So Netherlands will play these 4 teams, Z, K, A and U, that is countries from outside its own continent. Right? So each team will have 4 countries to play with. Next, each team played 2 morning and 2 evening matches. So out of the 4 matches that each team is playing, every country has to play 2 morning matches and 2 evening matches. That is given up till this point. Okay. Now, no team plays 2 matches in a day. So किसी भी एक particular day पे एक country आपका 2 बार नहीं खेलेगी, right? That is what is given. Now, the following information regarding the schedule of the tournament is known. All teams except for Ireland played their morning matches on consecutive days. Now, this is a little unique. Except for Ireland, every team will play its morning matches on 2 consecutive days. Consecutive days मतलब जैसे Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday and Friday, Saturday. So these have to be consecutive. So obviously अगर आप consecutive के choices देखते हैं तो Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, that is 3, Thursday, Friday 4, Friday, Saturday 5. तो 5 ही countries ऐसा काम कर पाएंगी. So out of the given 6 teams, इसीलिए आयरलैंड नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है. So there are a total of what, let's say 5 teams out of these 6. इनका टोटल आपका जो मॉर्निंग का मैचेस है दोनों, these have to occur on consecutive days, right? So we'll keep this in mind. The second point, Afghanistan won all their matches while Kenya lost all their matches. So अफगानिस्तान के सारे मैचेस क्या है, विन है, एंड केनिया के सारे मैचेस क्या है, लॉस मैचेस है. अच्छा, विन एंड लॉस को हम कैसे डिनोट कर देंगे? सो आई यू सिंपली सर्कल द अल्फाबेट्स जहाँ पे भी मेरे को यूनिकली पता चल जाएगा हाँ दिस टीम इज एक्चुअली विनिंग. तो सर्कल का मतलब जहाँ पे भी मैं पुट करूँगा उसका मतलब क्या होने वाला है, द टीम इज एक्चुअली विनिंग, राइट? सो सिंपल नोटेशन अपना फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट, यूएई वन देयर मैच ऑन फ्राइडे इवनिंग. अब यहाँ से मैं एक्चुअली मैं इस टेबल में कुछ ना कुछ तो लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ. तो यूएई वन देयर मैच ऑन फ्राइडे इवनिंग, वन ऑब्वियसली अगर है तो मतलब खेली तो होगी. तो यूएई on Friday evening. So I can simply put down UAE, and UAE won their match on Friday evening. किसके साथ खेला? We have no idea right now, but this has to be a win. तो UAE को सर्कल कर दिया. अच्छा, next, this statement is actually entirely done. Ireland lost its match on Saturday morning. So Saturday morning को Ireland lost.
तो आयरलैंड वुड हैव प्लेड अगेंस्ट सम अदर टीम एंड दैट अदर टीम वुड एक्चुअली हैव वन. अब कौन होगी वो नहीं पता, बट आयरलैंड बिकॉज लूज की है तो अदर टीम वुड एक्चुअली बी विनिंग. देयर आर नो टाइज. This is also done. Afghanistan defeated the teams from Europe. Europe is what? Netherlands and Ireland, right? European countries are Netherlands and Ireland. Afghanistan defeated the teams from Europe on Tuesday evening and Thursday morning. That means Afghanistan तो मैं लिख सकता हूँ कहाँ पे? Tuesday evening पे Afghanistan is there and Thursday morning Afghanistan is there. And Afghanistan defeated the teams. Obviously Afghanistan, और ये भी दिया होता Afghanistan won all their matches. तो anyways अफगानिस्तान वुड बी विनिंग. यहाँ पे भी किसके साथ विनिंग होगा ऑर्डर तो नहीं पता, बट इसने बोल दिया कि ट्यूसडे इवनिंग एंड थर्सडे मॉर्निंग अफगानिस्तान इज एक्चुअली विनिंग अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज फ्रॉम यूरोप. सो नेदरलैंड एंड आयरलैंड इन एनी ऑर्डर वी कैन सिंपली राइट डाउन फॉर नाउ. सो नेदरलैंड एंड आयरलैंड, और यहाँ पे इट वुड बी आयरलैंड एंड नीदरलैंड. सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो टिल दिस पॉइंट. ये अपना यूनिक वाला पार्ट दिया हुआ है. बियॉन्ड दिस विल हैव टू obviously use deductions to figure out the remaining matches, the winners over the 6 days. Now how do I go about this? दो कुछ की पॉइंट्स हमारे पास है ना, की पॉइंट्स एज इन यही वाला पॉइंट. एक्सेप्ट फॉर आयरलैंड ऑल टीम्स प्लेड द मॉर्निंग मैचेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यूज ऑब्वियसली नहीं हुआ है. एंड कीनिया लॉस्ट ऑल देयर मैचेस, ये वाला पार्ट याद रखेंगे. अफगानिस्तान वन ऑल देयर मैचेस, ये वाला पार्ट याद रखेंगे. एक्सेप्ट फॉर दैट वी हैव यूज्ड द रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स. ऑल्सो बाकी जो कुछ की पॉइंट्स थे कि अगर कोई टीम अगर इवनिंग में खेलेगी तो अगले दिन वो खेल ही नहीं सकती, तो ये सब अब थोड़ा रेलिवेंट हो जाएगा. विल हैव टू कनेक्ट द लॉट ऑफ डॉट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस अफगानिस्तान. बहुत ज़्यादा इसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं. तो ये जो पार्ट है कि एक्सेप्ट फॉर आइलैंड ईच टीम प्लेज इट्स मॉर्निंग मैचेस ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज, उसके लिए अगर अफगानिस्तान के अराउंड सोचना स्टार्ट करो तो अफगानिस्तान कहाँ पे हो सकता है? 2 मॉर्निंग. तो देखो एक मॉर्निंग तो आपको पता है, राइट. अब दूसरा अफगानिस्तान का जो मॉर्निंग मैच है आइदर इट विल बी वेडनेसडे और इट विल बी फ्राइडे, तभी 2 कंसेक्यूटिव हो पाएगा, राइट. या तो वेडनेसडे थर्सडे या फिर थर्सडे फ्राइडे. प्रॉब्लम यह है कि वेडनेसडे नहीं हो सकता. पूछो क्यों? इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ट्यूसडे को अफगानिस्तान इज प्लेइंग इन द इवनिंग, तो अगले दिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वेडनेसडे पे अफगानिस्तान का मैच नहीं होगा. दैट सिंपली मीन्स कि अगर थर्सडे को अफगानिस्तान खेल रही है तो उसका दूसरा जो मॉर्निंग मैच होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? ऑन फ्राइडे. एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान को मैं सर्कल कर दूंगा बिकॉज अफगानिस्तान इज विनिंग ऑल इट्स मैचेस फॉर दैट मैटर. सो अफगानिस्तान का ये वाला विन हो गया. नाउ अफगानिस्तान यहाँ पे खेल रही है, ठीक है. अफगानिस्तान अब किसके साथ खेलेगी? कैन वी फिगर दिस आउट? तो अगर आप नोटिस करो अफगानिस्तान अपने सेम कॉन्टिनेंट वाले के साथ तो वैसे भी नहीं खेलना है, राइट. तो यू के साथ तो नहीं होने वाला है, ठीक. अफगानिस्तान ये दोनों ये यूरोपियन कंट्रीज जो पहला आपका पार्ट है नीदरलैंड एंड आयरलैंड, इनके साथ खेल चुके हैं. नई ऑर्डर खेल रही है. हमें पता है कि दोनों टीम्स आपने यहाँ पे यूज कर लिया है. तो बचा कौन? जिम्बाब्वे या फिर केनिया. अब यहाँ पे या तो जिम्बाब्वे है या तो केनिया है. नाउ कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? देखो यार, अगर मैंने लेट से यहाँ पे केनिया लिखा, लेट से इफ दिस इज केनिया, ठीक है, दिस कंट्री इज केनिया, तो केनिया भी तो अपने दोनों मॉर्निंग मैचेस कंसेक्यूटिवली डेज में खेलेगी. तो केनिया अगर यहाँ पे हुआ तो केनिया का 2 कंसेक्यूटिव फिर कहाँ पे होगा? केनिया यहाँ के साथ, फिर यहाँ केनिया हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं बची है. दोनों कंट्रीज आपका फिक्स हो चुके हैं, ठीक है. नाम फिक्स नहीं हुआ है बट IN में से कोई एक तो होगा और दूसरा A है. तो केनिया अगर यहाँ पे हुआ तो केनिया यहाँ नहीं जाएगा, तो केनिया का दूसरा जो कंसेक्यूटिव डे होगा फिर वो सैटरडे होना पड़ेगा. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अ विनिंग टीम. ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा आपका जो यहाँ पे जब जाएगा ना तो केनिया हैज़ टू बी अ विनिंग टीम, क्योंकि आयरलैंड के साथ जो कंट्री खेल रही है हमने पहले सर्कल करके रखा हुआ है, इट हैज़ टू बी अ विनिंग टीम. बट केनिया का याद करो, केनिया लॉस्ट ऑल इट्स मैचेस. दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे मैं केनिया नहीं रख सकता, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिम्बाब्वे. दिस इज जिम्बाब्वे एंड दिस इज जिम्बाब्वे, ठीक है. थोड़ा इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस इज जिम्बाब्वे एंड सर्कल दैट लेटर. सो दिस इज जिम्बाब्वे एंड इट इज विनिंग, ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? तो अभी अगर आप नोटिस करो, अब आपका नेक्स्ट कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जैसे सैटरडे इवनिंग, राइट. अब सैटरडे इवनिंग को कौन सी टीम खेलेगी? कैन वी फिगर दिस आउट? तो अब यहाँ से नोटिस करें तो आयरलैंड एंड जेड, तो INZ आपका आ चुका है,
ठीक है, आयरलैंड एंड जेड हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने ये यूज़ कर लिया है। अच्छा, व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से अगर मैं ए का अगर मैच देखूँ, राइट, ए का आप ही मैच देखो, ज़्यादा आपको बेटर पड़ेगा। तो ए का जो इवनिंग वाला मैच होना है, क्यों? क्योंकि दो आपके मॉर्निंग मैच होने वाले हैं और दो आपके इवनिंग मैच होने वाले हैं। तो ए का दो मॉर्निंग मैच तो आपने लिख लिया है, तो ए का आपको दो इवनिंग मैच लिखना पड़ेगा। देखो आपको कहाँ पे हो सकता है, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज ट्यूसडे को अफगानिस्तान खेल रही है, दैट मीन्स मंडे को इवनिंग में अफगानिस्तान नहीं खेली होगी, डन, नहीं होगा। अच्छा, ट्यूसडे को एक तो ऑलरेडी है। वेडनेसडे को अगेन अफगानिस्तान इवनिंग में नहीं खेल रही होगी बिकॉज ट्यूसडे को इवनिंग में अफगानिस्तान है, तो वेडनेसडे को अगेन अफगानिस्तान नहीं खेल सकती। थर्सडे को मॉर्निंग में अफगानिस्तान खेल रही है, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि इवनिंग में नहीं खेल रही होगी, और ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ इसलिए नहीं खेल रही होगी क्योंकि फ्राइडे को अफगानिस्तान खेल रही है, तो थर्सडे को भी नहीं हो सकता। फ्राइडे को अगेन इवनिंग में नहीं खेल रही हो क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी वो खेल चुकी है फ्राइडे के दिन अफगानिस्तान। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान का जो वो चौथा मैच है या फिर जो दूसरा आपका इवनिंग का मैच है, वो कहाँ पे आपका सैटरडे के दिन है। और किसके साथ खेल रही होगी ये भी अभी आप सिंपल बोल सकते हो, क्योंकि एन और आई के साथ वो खेल चुकी है दो जगह पे। यहाँ पे जेड के साथ खेल चुकी है अफगानिस्तान, तो दूसरा आपका अफगानिस्तान का जो लास्ट वाला मैच बच गया किसके साथ बच गया, केनिया के साथ बच गया। तो दिस हैज टू बी केनिया एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज विनिंग, राइट। सो ये हमने एक्चुअली में फिगर आउट कर लिया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। ये बहुत इजी लग रहा है क्योंकि चार आगे जो टीम्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। अब लॉजिक बस इतना सा लगने वाला है, यहाँ पे जो भी टीम खेल रही होगी ना यू के साथ, वो टीम सैटरडे को खेल ही नहीं सकती। और सैटरडे को अगर आप नोटिस करो, आपके चार अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, आई जेड ए एन के। सो आई जेड ए एंड के अलावा बचा क्या आपका, एन और यू। यू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन रहा होगा, ऑब्वियसली एन रहा होगा। सो यहाँ पे एन आपने फिगर आउट कर लिया, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, थर्सडे वाला पार्ट। सेम लॉजिक से इसको फिगर आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी टीम्स खेलेंगी ना वो फ्राइडे को खेल ही नहीं सकती। तो फ्राइडे को अगर आप नोटिस करो चार टीम्स खेल रही हैं, राइट, ए जेड यू एन। सो ए जेड यू एन एन, तो बचा क्या आपका, के एन आई। तो के एन आई यहाँ पे खेलेगी, गारंटीड खेलेगी के एंड आई। अच्छा, इसमें विनिंग लूजिंग बता सकते हैं क्या, यस, के इज केनिया, केनिया इज गोइंग टू लूज ऑल इट्स मैचेस। इसका मतलब ये वाला आयरलैंड यहाँ पे विनिंग होगा। नाउ जैसे मैं यहाँ पे आयरलैंड देखता हूँ ना, तो ये मेरे को समझ में आता है कि अभी तक जो एक पॉसिबिलिटी थी कि दोनों मतलब ऑर्डर्स हो सकते थे एन और आई के यहाँ पे, वो अब खत्म हो जाएगा। बिकॉज यहाँ अगर आयरलैंड खेल रही है इवनिंग में, तो मॉर्निंग में तो नहीं खेली होगी ना, तो फिर यहाँ पे कौन होगा, नीदरलैंड होगा। नाउ आई कैन सिंपली इरेज दिस पार्ट एंड सिंपली राइट, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ए जो है वो नीदरलैंड के साथ खेली होगी, और यहाँ पे कौन आ जाएगी फिर आपकी, आयरलैंड आ जाएगी, राइट। दिस इज डन। एंड ऑल्सो नाउ इसने ये बोला था ना कि एक्सेप्ट फॉर आयरलैंड ऑल टीम्स प्ले द मॉर्निंग मैचेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज। दैट सिंपली मीन्स कि एन अगर यहाँ पे है ना, तो एन आपका वेडनेसडे को भी इवनिंग में रहेगा, तभी कंसेक्यूटिव बन पाएगा। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम लॉजिक जो भी हम पीछे से बनाते हुए आए हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ए एन के आई है, तो यहाँ पे वेडनेसडे को इवनिंग में वही टीम्स खेलेगी जो इनसे अलग रही होगी, राइट। तभी आपका ये चार टीम खेल रही है, चार टीम में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा इवनिंग में। तो ए एन के आई, सो ए एन के आई, बचा क्या, जेड एन यू। आई कैन सिंपली से कि यहाँ पे कौन है, जेड एंड यू। हाँ, इसमें विनिंग लूजिंग अभी आप नहीं बता सकते हो, वी डोंट नो कि जेड जिम्बाब्वे विन कर रहा है या फिर यूई आपका विन कर रहा है, ये हम नहीं बता सकते। नाउ कैन वी डू दिस पार्ट, यहाँ पे इसके साथ कौन खेल रहा होगा, तो एन के साथ मे बी अगर मैं ऐसे नोटिस करूँ कि कौन कौन खेल चुका है, तो लेट्स से एन के साथ अगर मैं नोटिस करूँ तो कौन कौन खेल चुका है, एन के साथ ए हो चुका है, एन के साथ आपका यू हो चुका है, तो एन ए एन यू आपका हो चुका है। तो एन ए एन यू, एन के साथ आपका बचा क्या, जेड एंड के। तो जेड एंड के में से कोई एक आएगा। कैन वी डू दिस, जेड एंड के अभी वाला पार्ट मे बी अभी नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है, अभी हम शायद नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, कैन वी डू दिस पार्ट, यहाँ पे इवनिंग किसका बचा हुआ है, येस वी कैन डू दिस पार्ट बिकॉज इवनिंग मैचेस आपके बाकी 5 डेज पे आप ऑक्यूपाई कर चुके हो ना, तो सिंपल काउंट कर लो कि इवनिंग मैच किसका बचा हुआ है। तो जैसे ए का 2 इवनिंग मैच आपका हो चुका है, 2 एज आर देयर। फिर यू का 2 इवनिंग मैच हो चुका है क्या, यस, यू का भी 2 इवनिंग मैच हो चुका है। जेड का 2 इवनिंग मैच हो चुका है क्या, नहीं, जेड का भी आपका एक इवनिंग मैच हुआ है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जेड यहाँ पे होगा, तो जेड इज ऑल्सो डन।
जेड के बाद आपका के का 2 इवनिंग मैच हो चुका है क्या, के का 2 इवनिंग मैच, यस। एन का 2 इवनिंग मैच, एन एक इवनिंग यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली एन का इवनिंग आपका यहाँ पे आएगा। सो ये एन का इवनिंग भी बन जाता है। इसका रिजल्ट भी अगेन आप नहीं बता पाओगे, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली डन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे अब अगर हम और फिगर आउट करें तो मॉर्निंग मैचेस के बारे में हम सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए का 2 मॉर्निंग मैच तो यार हो गया आपका, ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन, ए का मॉर्निंग मैच आपने बना लिया है। फिर यू का 2 मॉर्निंग मैच, अब अगर मैं यू का 2 मॉर्निंग मैच देखूं तो कहाँ पे आ सकता है, तो अभी तक यू का एक भी मॉर्निंग मैच तो आपने लिखा है नहीं, राइट। तो अब यू का 2 मॉर्निंग आएगा, जहाँ पे भी आएगा कंसेक्यूटिव आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो वेडनेसडे के दिन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वेडनेसडे के दिन आपने इवनिंग में यू को खिला रखा है, तो यहाँ पे आपका यू मॉर्निंग में नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे यू मॉर्निंग में नहीं आएगा तो यू के जो 2 मॉर्निंग मैचेस होने हैं कंसेक्यूटिवली वो कहाँ पे होने हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। सो 2 यू के मॉर्निंग मैचेस आपने लिख लिए, सो दिस इज डन। जेड के 2 मॉर्निंग मैचेस हो गए हैं क्या, यस, 2 जेड आप लिख चुके हो, दिस इज ऑल्सो डन। के 2 मॉर्निंग मैचेस, केनिया, यस, केनिया के 2 मॉर्निंग मैचेस हम कहाँ लिख सकते हैं, तो अभी फॉर दैट मैटर के जो 2 मॉर्निंग मैचेस है इनमें से किसी एक जगह आएगा, है ना। तो केनिया जो है वो यू के साथ एक ही मॉर्निंग मैच खेलेगा यहाँ पे, या तो यहाँ खेलेगा या तो यहाँ खेलेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि केनिया विल बी ऑन दिस वेडनेसडे वाला पार्ट। तो केनिया का जो मॉर्निंग मैच एक है एटलीस्ट वो यहाँ पे हो जाएगा, एंड इसका रिजल्ट एक्चुअली मेरे को पता है बिकॉज केनिया इज लूजिंग ऑन इट्स मैचेस, दैट मीन्स नीदरलैंड का ये वाला मैच क्या होगा, विनिंग मैच हो गया। सो दिस इज डन। तो केनिया का अभी इसमें से किसी एक जगह पे आपने लिखना है, तो केनिया का एक बचा हुआ है, लेट्स कीप दिस काउंट। एन का अगर आप नोटिस करो, एन के जो 2 मॉर्निंग मैचेस है, तो एन का 2 मॉर्निंग मैच भी आपने कंसेक्यूटिव लिख लिया है, दिस इज ऑल्सो डन। आयरलैंड, तो आयरलैंड का ही आपका बच रहा होगा, सो आयरलैंड का एक मॉर्निंग मैच आपको लिखना है, तो आयरलैंड और यू का मैच होगा। बट हाँ, यहाँ सब दिख गया कि आयरलैंड ऑटोमेटिकली आपका ट्यूसडे को शाम में खेल रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट आयरलैंड, दिस हैज़ टू बी आयरलैंड, एंड ये अगर आयरलैंड है तो बचा हुआ के आपका यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव। और मैं इसको वैसे भी बोल सकता था, बाय द वे इसको अपने ध्यान नहीं दिया कि आपका वेडनेसडे को इवनिंग में लिखा ही था, तो दूसरा आपका के कंसेक्यूटिव यहाँ से भी आ जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच द सेम पॉइंट, ये अपने को क्लियर हो गया। ऑल्सो यहाँ ट्यूसडे वाला मैच का रिजल्ट अपने को पता है, केनिया इज ऑब्वियसली लूजिंग, तो यूएई वुड बी विनिंग, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग मोर अबाउट दिस। यहाँ पे ये मंडे के जो आपके 2 मैचेस है और वेडनेसडे का ये जो एक मैच है, इन 3 मैचेस के रिजल्ट हमें नहीं पता, except for that we know which 2 combination of teams are playing on which day and in which slot, morning or evening. So that information we have. Now we can use the information to answer all the problems. So what is the first problem? Which team played against UAE on Friday evening? So Friday evening UAE के साथ कौन खेला? Netherlands खेला. So first option. देन हाउ मेनी टीम्स प्लेड देयर इवनिंग मैचेस ऑन ऑल्टरनेट डेज? सिंपली काउंट कर लेते हैं, जैसे ए का इवनिंग मैचेस क्या ऑल्टरनेट है? नो, ट्यूसडे एंड सैटरडे, सो ए इज नॉट देयर। ये यू का इवनिंग मैचेस, येस, वेडनेसडे फ्राइडे, सो यू विल बी देयर, सो यू का जस्ट देयर। जेड इवनिंग मैचेस ऑन कंसेक्यूटिव, येस, मंडे वेडनेसडे, सो जेड इज ऑल्सो टू बी काउंटेड। के इज ऑल्सो थर्सडे सैटरडे, अगेन ऑल्टरनेट, सो के इज ऑल्सो देयर। व्हाट अबाउट एन का यहाँ पे है और डायरेक्टली फिर फ्राइडे है, सो दिस इज नॉट ऑल्टरनेट। आई का अगर नोटिस करें, सो आई इज देयर एंड आई इज ऑन ट्यूसडे एज वेल, तो अगेन ऑल्टरनेट। सो बेसिकली वी हैव 4 countries, 4 teams who played their evening matches on alternate days, option 4. Third, which team did UAE play against on Wednesday evening? So UAE Wednesday evening is simply Zimbabwe. Fourth, if UAE lost both their remaining matches. Now, it is talking about the results, right? So, if UAE lost both their remaining matches, तो UAE का अगर मैं notice करूँ, lost both their remaining matches, मतलब Zimbabwe is winning here and Ireland is winning here. Then which team qualified? Which team qualified for the World Cup 2019 if it is known that the tiebreaker was not required? अब टाई ब्रेकर कब रिक्वायर्ड नहीं था? व्हेन यूनिक आपके विंस आपके आ रहे हो, राइट, इक्वल विंस होता तब टाई ब्रेकर की जरूरत पड़ती। इट इज सेइंग कि डिफरेंट विंस है, तो इफ वी ट्रैक विच टीम इज एक्चुअली हैविंग द हाईएस्ट विन एंड सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट,
तो मे बी अगर हम स्टार्ट करें, देखो अफगानिस्तान का मेरे को स्टार्टिंग से पता है, अफगानिस्तान इज एक्चुअली हैविंग 4 विन्स, उसने इन्फॉर्मेशन में दे दिया था। उसके बाद अगर मैं कंट्रीज़ को ट्रैक करूँ, जैसे कि लेट्स से ऑर्डर में चले गए, जैसे यू, तो यू के कितने टोटल विन्स है, यू के अगर आप विन्स काउंट करो, सो दिस इज 1, दिस इज 2 विन्स, तो यू के 2 विन्स हो गए। देन अगर मैं जेड का देखूँ, जेड के कुछ विन्स थे क्या, जेड का 1 विन, 1 अभी तक फिलहाल आपका, सॉरी 1 एंड 2, 2 विन्स आपके जेड के। देन के का अगर मैं देखूँ, केन्या का तो वैसे भी विन्स नहीं, केन्या को देखने का कोई मतलब नहीं है। नीदरलैंड्स का अगर मैं विन देखूँ, नीदरलैंड अभी तक तो नहीं आया, दिस इज़ 1 विन, एक मैच और हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स आपका नीदरलैंड का एक ही वन है, एक और बढ़ सकता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट टीम, इसका कोई पॉइंट नहीं है। आयरलैंड का अगर मैं देखूँ, आयरलैंड इज़ हैविंग 1, 2, अभी तक 2 है, तो आयरलैंड का आपका 2 ऑलरेडी है। नाउ जो सेकेंड टीम होनी है ना, वो किसको होना है, या तो यू को होना है, या जेड को होना है, या फिर आई को होना है। देखो यू का, अब जो आपको देखो रिजल्ट किसका नहीं पता है, सिर्फ आपके जेड और एन वाले मैच का नहीं पता है ना, तो या तो आपका जेड का बढ़ेगा, राइट, या तो आपका एन का बढ़ेगा, इन दोनों में से किसी एक का बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि सेकंड टीम आपको बिना टाई ब्रेकर के मिल गई, राइट, दैट मीन्स जेड और एन में से एन अगर विनिंग करी होती तो ये तो 2 हो गया होता, तब तो ये तीनों, ये चारों का सेम हो जाता। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि अगर सेकंड टीम मिलना है आपको विदाउट टाई ब्रेकर और जेड और एन में से किसी एक को जीतना है, तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली जेड जीतेगा, ये जीतेगा मैच, तो इसका 3 चला जाएगा, एंड 4 एंड 3 विंस के साथ अफगानिस्तान एंड the Zimbabwe will proceed to the next round. Right? So the answer to this problem will be option 3, Zimbabwe. Right? So I hope you understood this set. If you have again any doubts, you can just put that in the comments. Regarding the difficulty, I would rate the set somewhere above moderate, a little above moderate, because we have to look out a lot of information, we have to place information. So in an exam environment, this set on a scale of let's say 1 to 10 will lie somewhere around the 6 marks, right? Okay, thank you.